EPR is a responsibility to the producers, but producers can take the help of all the recyclers to recycle in an environment-friendly manner. So, a big round yet need to go into it because it's not possible to replace 100%. But yes, we need to look into that direction, and when we work on this, we have to work as a manufacturer at our end as well as to the recyclers who actually are producing the secondary raw materials. Third part is we need to build an ecosystem which surrounds around the management of end of life products, whether it is tire or any other products for that matter. And when building this ecosystem, we need money. So as a manufacturers, we have agencies like TRI and other experts in this area with the manufacturers so that we can identify what are the issues. Since we all know in our country, we have a huge population, and we by ourselves are very flawed practices of those things. And from the childhood we know we recycle each and everything. This is in blood to ensure that this ecosystem becomes financially viable. And why not the customer, when we are doing the pricing of the product, the end of life disposal cost of the product should also be taken in the overall pricing of the product. So there should not be any shortage of funds, and we have it's just as कि हो कूड़े के पहाड़ पहले से 20 से 25 मीटर नीचे आ गए। ये काम किया हमने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए काम किया। हम लोग जो हमारे कंप्यूटर थे हम उसको कबाड़ी को बेच देते थे, कीबोर्ड ऐसे वेस्ट हो जाते थे। हमने एक पॉलिसी बनाई, एक कंपनी के साथ हमने कहा किया कि आप इसको लीजिए, आप इस पे काम कीजिए। 3 कंपनियां हमने ऐसे चूज की, उन 3 कंपनियों ने अपना ऐप बनाया। उस ऐप के माध्यम फ्रिज हो, टीवी हो, यदि कोई अपना देना चाहता है जो उसका बिल्कुल वेस्ट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको कबाड़ी को दे देते थे, 20-30 रुपए कबाड़ी देके जाता था, उस ऐप उनसे अप्रोच किया और जिसके 20-30 रुपए उन्हें टीवी के मिलते थे, उससे 500 रुपए, 700 रुपए, 2-2000 रुपए तक उन लोगों को मिला। और मिलने की वजह थी जो हम कंप्यूटर को फेंक देते हैं उसमें 56 प्रकार की चीजें निकलती हैं। उसमें आप चांदी भी उसमें मिलती है, उसमें गोल्ड भी निकलता है, इन चीजों के माध्यम से जो टीवी को फेंक देते थे उनको भी पैसा मिला, जो कंपनी आई उनको भी फायदा हुआ। आज मैं ये देख के जो ये कार्यक्रम चल रहा है रबड़ वेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस रबड़ को लोग सड़कों पे जला And next, I would like to call upon stage Mr. Please एक बार जोरदार तालियां हो जाए। I want to thank Anand sir again. He has a very busy schedule now. Sir has to leave. He has a meeting, but sir will join us online from post lunch at 2 p.m. And sir will be my धन्यवाद sir. Join करने के लिए Patrick sir, thank you so much for joining us. With this, we end our inaugural session. segregation
बढ़ते रहता है। तो जैसे हम आज सोच रहे हैं आज कुछ हो जाए तो कल पोस्टपोन होते रहेगा। तो ऑन ए लाइटर नोट बेसिकली वी आर ऑल वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बेसिकली। And BAS is already into the job, and also the sustainable material which is generated like RCB. We talk about the regenerated recovered carbon black, the standard is being made. Crumb rubber, the standard is being made. CRRB, the standard is being made. But all these standards, why we do that? In fact, I talk about 7 years back. Cost of compliance बढ़ गई है उनकी। अब रूल पोल्यूटर्स पे सबको हमें मालूम है, विपिन सर ने भी बताया आज सुबह अपने कीनोट उसमें कि रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट होनी चाहिए ईपीआर के लिए। और जब तक कलेक्शन, रिसीविंग और सॉर्टिंग एंड स्टोरिंग नहीं होगी तो रिसाइकल भी नहीं हो पाएगा। और 2016 का जो रूल था वो टिपिकली कलेक्शन के ऊपर था और 2022 का रिसाइक्लेबिलिटी के ऊपर आ गया। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर पीआरओ या डब्ल्यूएमएस या डिसमेंटलर सिस्टम में स्टेक होल्डर्स नहीं होंगे तो माल कहाँ से आएगा? ठीक है, रिसाइकलर उठाएगा, रिसाइकलर मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे और उसको लेके आके हम लोग रिसाइकल करेंगे। बट इट इज बियॉन्ड ब्रिंगिंग मटेरियल बैक, इट इज अबाउट ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड देन सीइंग वेदर द मटेरियल इज राइट for resource recovery. That is a larger challenge. So typically क्या कहते हैं इसमें material flow, money flow और information flow, ये 3 typical important aspects हैं जो विपिन सर ने भी सुबह बताया सबको। Material flow कहाँ से आ रहा है और उसको कैसे हम segregate करके काम कर रहे हैं, वो एक बड़ी important aspect है। पैसा नहीं होगा तो कोई भी flow काम ही नहीं करेगा। अगर वैल्यू प्रोपोजिशन हम इनफॉर्मल सेक्टर को नहीं देंगे, जो उनकी एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है इतनी बड़ी, अगर हम उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो वो मटेरियल फ्लो आपके सिस्टम में और रिसोर्स रिकवरी के अंदर नहीं आ पाएगा। We have worked since 2017 very closely. In the crowd who knows, but people who don't know, tires produce a lot of harmful gases. They take time to burn. The fires and all you see outside of your towns, sometimes from the industries, might be from tire industry as well. Cause that they are breeding ground for mosquitoes, all kinds of basic stuff, where the tires, what harms that they cause is what is shown in the slide. They fill up the land space. You can't have the like separation of different tires accordingly. It's all haphazard. It's a headache process, to be honest. So cutting to the chase, EPR is not only an extended producer responsibility, it's also an environment protection responsibility, as Mr. Wrinkle and Mr. Chetan. You have, ask whatever question you have. I think sir wants to ask and introduce yourself also. Let us make this very interactive. Myself Rajiv Jain from Gwalia. मेरा क्वेश्चन ये है, जो क्रम रबर से उसको परचेज करते हैं, उसका बेनिफिशियल कौन होगा? क्रम रबर वाला होगा या टायर पार्बोरेसिस वाला होगा? यदि क्रम रबर उन्होंने उसको बना दिया तो वो पूरा उन्होंने उसको प्रोसेस कर दिया, उन्होंने उसको रिसाइकिल कर दिया। अब पार्बोरेसिस वाले को उसका फायदा मिलेगा या नहीं? या बीच में और कोई ट्रेडर्स आते हैं और कोई चेन हैं इस चीज़ में जो ये वेस्टेज को यूज़ करने का है और इससे कोई प्रोडक्ट बनता है हमारे देश के लिए, देश के उसमें किसी भी चीज़ में अगर वो उपयोग आता है और हमारा प्रदूषण उससे कम होता है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। या हम लोग भी इसमें अवेयरनेस करते रहते हैं पुलिस के थ्रू, अपने जो स्टाफ है उनको बताते हैं कि आपको एरिया में किस टाइप की गाड़ियों को रोकना है, अगर उसके टायर घिस रहे हैं या उसकी पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो उसको चालान करते हैं, उसको जमा भी कर देते फिर। और कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ गाड़ियाँ जो जिसमें कि शराब पकड़ी जाती है या कुछ उसको हम छोड़ते भी नहीं फिर, और परमानेंटली हम उसको करते हैं क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ यूज होती है उसमें। तो इस टाइप के जो है ना वो फिर वेस्टेज में जाता है, फिर उसके लिए आप आगे सोच रहे हैं इसके बारे में, ये अच्छी चीज़ है। हमारे लाइक कोई भी किसी प्रकार का कोई काम होगा, मैं SHO मयूर विहार
यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम करना हो, कई सारे NGOs है तो कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें जिस प्रकार की आपको कोई सहायता चाहिए हो उसमें पुलिस की तरफ से जो भी है तो आप बिल्कुल देंगे। थैंक यू वेरी मच। E-waste, battery waste, and of course the tire recycling as well. So as of now, I will just talk about the market growth as of in the year 2021. It was about 52,000 million US dollars for the tire recycling market in 2021, and excuse me. And it is expected that by the year 2031, it would be about 73,000 million US dollars, and that's a very big growth. And recycling the end-of-life products is the need of the hour. That's the best thing to do as of now. Then talking about the EPR implementation. So again, since it is mandatory and the government is taking a lot of that everything is under control and recycling. You know, when we started with some 3,000 square feet of an area. That was our first plan. Now it differs between different tires, between brands. So everybody's got his own mixtures in there. So it is not like plastic materials where you know what is the content. If it is a pure material, not a mix, maybe not the best example. Or if we talk about simple metals and e-waste in that part. E-waste looks the same around the globe. We all have the same products. Computers are computers, TVs are TVs, fridges are fridges. They're all made in a very similar way. And with this, the material composition is very similar. This in principle has led to the point that due to the fact that there was an ability to export the tires that we had been collecting outside of Europe, for example, into India, in that part, the investment in technology and building up downstreams for the tires in Europe has not been great. So we were more or less exporting the problem. टायर से पोल्यूशन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। अभी तक यही देखा गया है कि चौराहे पे कोई एजिटेशन होता है तो उसमें टायर को जलाते हैं, फिर पोल्यूशन होता है, वो बहुत बुरा लगता है। पर अभी पिछले 10-15 साल में आपने कभी देखा है किसी रोड पे टायर को देखा है आपने कि वो लावारिस पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं है? पंक्चर वाले के यहाँ पे है, पर बाज़ार में वैसे नहीं मिलेगा आपको। छत के ऊपर जो पड़े रहते थे, पानी इकट्ठा होता था, मच्छर पैदा होते थे, वो चीज़ आज की डेट में आपको नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि अभी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो है टायर की, वो बहुत ग्रो कर गई है इंडिया के अंदर स्पेशली। आप मानेंगे कि 20 लाख टन से ज़्यादा टायर प्रोड्यूस होता है इंडिया में पर ईयर, और उतना ही रिसाइकिल होता है, और 3 से 4 लाख टन जो है वो बाहर के देशों से इंपोर्ट होता है टायर। पूरा यहाँ रिसाइकलिंग में जाता है। रिसाइकलिंग के बहुत सारे वर्टिकल है यहाँ पे। इसका क्रम बनाया जाता है, रिक्लेम बनाया जाता है, CRM भी एक नई टेक्निक आई है, क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुइन। जो रोड्स बनती है कोलतार और गिट्टी से बनता था, अब उसके अंदर रबर पार्टिकल भी डलने लग गया है, जिससे स्ट्रेंथ भी अच्छा रहता है रोड का और लाइफ भी बनी रहती है उसकी। इसी तरह से अब एक नई टेक्निक है, दैट इज़ टायर पायरोलिसिस प्रोसेस। पायरोलिसिस जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर इन वेस्ट टायर्स को गलाया जाता है एक चैम्बर के अंदर, जहाँ पे कोई लीकेज नहीं होता है। उसमें जब अपने कोई भी चीज़ को उबालते हैं, गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं, या तो उसमें भाप बनती है या गैस बनती है। इसके अंदर एक गैस बनती है जिसको हम ठंडा कर लेते हैं कंडेंसर में, और वो गैस से वो जो ठंडा होता है वो ऑयल इकट्ठा होता है। दैट इज़ ए रिप्लेसमेंट ऑफ फर्नेस ऑयल एंड LDO, लो डेंसिटी ऑयल। एक प्रोडक्ट और बनता है कार्बन, काले रंग का पाउडर निकलता है, उसमें भी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6000 प्लस। वो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो सारा कार्बन यूज़ होता है, और जो ऑयल बनता है जो कंडेंस करके गैसेस को, वो भी रिसाइकिल मतलब हीट जनरेशन में काम आता है। जैसे हॉट मिक्स प्लांट आपने देखा होगा, रोड साइड में जो रोड बनाते हैं उसमें जो डामर होता है उसको गर्म करने में, या बड़ी बड़ी फर्नेसेस है, ऑयल फर्नेसेस LDO और फर्नेस ऑयल से चलता है, उसको जलाने की उसका सब्स्टिट्यूट है हमारा ऑयल, जिसका सल्फर कंटेंट 1% से भी कम है, इसलिए बहुत यूज़फुल है ये। थर्ड प्रोडक्ट बनता है इसमें, उसके साथ हाथ में थर्ड प्रोडक्ट जो बनता है हमारा, क्या लगाना,
थर्ड प्रोडक्ट जो बनता है वो वायर निकलता है, स्टील वायर जो टायर के अंदर होता है वो भी रिसाइकिल में चला जाता है। और एक गैस बनती है जिसको वापस फ्लेमेबल होती है, जलाने में काम में लेते हैं, तो हीटिंग पर्पस उसी से हो जाता है। तो ये जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आया है अभी 13-14 साल, 2010 से ये पॉलिसी मार्केट में आया हुआ है। और इसी के रिगार्डिंग अभी गवर्नमेंट ने EPR पॉलिसी लागू किया है। EPR का मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको एंड ऑफ लाइफ तक पहुंचाया जाए। तो टायर बनाने वाली जो कंपनियां हैं, हमारा C8, JK जो भी हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर में इस पूरे वेस्ट को जो इंडिया में निकलता है डोमेस्टिक वेस्ट, उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर के अंदर रिसाइकिल किया जाए। तो वो लोग हम रिसाइकलर्स का, जैसे मैं सतीश गोयल, प्रेसिडेंट ऑफ टायर एंड रबर रिसाइकलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मेरे पास 330 के करीब मेंबर है आउट ऑफ 550 टोटल रिसाइकलर अक्रॉस इंडिया अवेलेबल है। तो मेरे जो रिसाइकलर हैं वो इनके मटेरियल का जो वेस्ट टायर है उनको पूरी तरह से रिसाइकिल करके उनका ऑयल, कार्बन और वायर निकाल देते हैं और ये 100% रिसाइकिल हो जाता है। इसलिए हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और अब प्रोड्यूसर जो है वो ये काम हमसे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। जैसे वेस्ट आया है, प्लास्टिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऐसे अलग अलग सारे वेस्ट के अंदर अपना टायर वेस्ट के अंदर भी EPR आया है और उसको लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2022 से। अब ये स्टार्ट हो रहा है, प्रोड्यूसर का जो रजिस्ट्रेशन है CPCB पोर्टल पे स्टार्ट हो गया है और अब रिसाइकलर्स का रजिस्ट्रेशन चालू होने वाला है। तो ये मेरे और साथी लोग अवेलेबल हैं जो PRO कंपनीज है इनका, जैसे मिस्टर पैट्रिक इज देयर, इज फ्रॉम जर्मनी एंड ही इज CEO ऑफ दिस कंपनी, एंड राधिका जी अब आपको कुछ इनके बारे में बताना चाहेंगे। इंडिया में हमने 2017 में ये PRO प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जब ई-वेस्ट लागू हुआ था और प्लास्टिक वेस्ट, तो हम लोग ई-वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट को प्रोड्यूसर्स को हेल्प करते हैं, ब्रोकर्स, ब्रांड ओनर्स को, कि कहाँ से हम कलेक्शन करके और रिसाइकिल के लिए भेजते हैं और उससे उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ रिसाइकिल आता है अब आज के नए रूल में वो EPR सर्टिफिकेट में तब्दील हो जाएगा, जहाँ पे हर रिसाइकलर को वो सर्टिफिकेट में डाल के EPR सर्टिफिकेट बनाना है। हमने अभी तक 1,50,000 मेट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट किया है और प्लास्टिक में हमने
टू से समथिंग? question. हर कंट्री के अंदर अलग अलग होता है, तो अगर कुछ इसके बारे में जर्मनी से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो हम पैट्रिक सर से पूछ सकते हैं। बाकी ये पॉलिसी अभी सबको फॉलो करना पड़ेगा, सारे रिसाइकलर्स को, सारे प्रोड्यूसर्स को। और एक प्रोडक्ट और आ रहा है, फॉरगॉट टू मेंशन, रिकवर्ड कार्बन ब्लैक। जो कार्बन ब्लैक जो निकलता है हमारा, उसको प्रोसेसिंग करके अब एक नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उसका नाम है रिकवर्ड कार्बन ब्लैक, RCB। वो टायर मैन्युफैक्चरिंग में फिर से काम आएगा। यानी कि दो तरह का इकोनॉमी होता है, एक होता है लीनियर इकोनॉमी, एक होता है सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि जो चीज़ जहाँ से निकली है वहीं तक पहुँचाना अपना कार्य होता है। तो अब इसके माध्यम से पायरोलिसिस प्लांट से कार्बन 4 बनेगा, कार्बन 4 से RCB बनेगा, और RCB फिर टायर मैन्युफैक्चरिंग में वर्जिन कार्बन ब्लैक को रिप्लेस करेगा। ये भी लगा लो। पॉलिसी एमस्टेस कार्यक्रम में आज बहुत अच्छा लगा, जिसपे निगम चल रहा है। पहले हम लोगों ने ई वेस्ट को प्लान बनाया और ई वेस्ट को ख़त्म किया, लोगों को इनकम भी हुई, और जो पॉल्यूशन होता था, इन्वायरमेंट खराब होता था, उसको सही किया। अभी कूड़े के पहाड़, जो 3 पहाड़ हैं, उनके माध्यम से मिट्टी बनाने वाले हैं, जिससे सड़कों का निर्माण चल रहा है, और कूड़े के पहाड़ 15 से 20 मीटर कम हो। हमारे यहाँ जो मकानों से मलबा निकलता है, उस मलबे को हम लोग रिसाइकलिंग करके डैश बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं, जो निर्माण में काम आते हैं। जो मैं आपको जानकारी देना चाहूँ, जो टाइल्स बनाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बनाए 70% टाइल्स वहीं से रिसाइकलिंग होकर बनी है। और आज जो बड़ा कार्यक्रम हुआ रबड़ वेस्ट, टायर्स के माध्यम से उसको रिसाइकलिंग करके, क्योंकि टायर से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। जब टायर जलता है तो पोल्यूशन फैलता है, आप वहाँ से निकल भी नहीं सकते। इसके अलावा जैसा बताया कि टायर को आप अपनी छतों पर रख देते थे, उसमें पानी भर जाता, मच्छर पैदा होता था, बीमारियाँ पैदा होती थी, उससे भी मुक्ति मिली है। ये बहुत बड़ा काम ये इंडस्ट्री कर रही है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम मिलेगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली का एनवायरनमेंट है, देश का एनवायरनमेंट है, वो बहुत अच्छा होगा और पोल्यूशन फ्री होगा। सरकार ने कहा ना, जो टायर को बेचने वाली कंपनियां हैं, उनका काम है इसको खत्म करना। तो सर गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट इसको लागू कर चुकी है। ये काम चल रहा है, सरकार इसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है। सरकार ने कहा जो भी हमसे सहयोग चाहिए हम आपको सहयोग देंगे, लेकिन हमें पॉल्यूशन फ्री अच्छा इन्वायरमेंट की आवश्यकता है। सर लोकल लेवल पर टायर कलेक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि लोग या तो जला देते हैं या फिर पहुंच नहीं पाता है सही जगह पे ताकि वो रिसाइकल हो। आपका सवाल जो है बहुत सही है, पर ये 2010 से पहले हुआ करता था। आज की डेट में ओपन पॉलिसी मार्केट में है, कलेक्शन ऑलरेडी हो रहा है। 2010 से ये इंडस्ट्री मार्केट के अंदर है। अब 13 साल हो चुके हैं, स्टेबल है। आज कोई भी टायर को मार्केट में जलाता नहीं है। जलाने के लिए उसको एक टायर को, जैसे एक ट्रक के टायर को आप वैल्यू मानते हैं, तो उसको 1000 रुपया कॉस्ट है उसका। तो 1000 रुपया कोई भी ख़राब नहीं करने वाला आज की डेट के अंदर। इसलिए उसका आजकल ऑयल बनता है, कार्बन बनता है, चार बनता है, स्टील वायर निकल जाता है, पूरा रिसाइकलिंग हो जाता है। तो जलाने की ज़रूरत बची नहीं है अपने को। अब जलाते नहीं हैं, अब इसको पायरोलिसिस करते हैं। पायरोलिसिस का मतलब होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दैट मटेरियल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ जलता है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है वहाँ कुछ नहीं जलता है, वहाँ कंबस्जन होता है। कंबस्जन का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ जल करके ख़त्म नहीं हो रही है, उसको हम मटेरियल में चेंज कर रहे हैं, उसको वैल्यूबल मटेरियल बना रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं। नो वेस्ट, जीरो वेस्ट वाली टेक्नोलॉजी ये मार्केट में आई है और गवर्नमेंट पूरा सहयोग कर रही है इसके अंदर। अब ये लीगलाइज्ड हो गए हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरा का पूरा, कलेक्शन से लेकर के और इसके रिसाइकलिंग तक सारे चीज़ें अब सिस्टमेटिक है। और MOEF जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दोनों मिल कर के पूरा सहयोग करते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करने के अंदर लगे हुए हैं। इसी का नतीजा है EPR। तो गाँव देहात के जो एरियाज होते हैं वहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, इसके लिए क्या प्रोग्राम वगैरह? आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 700 के करीब पायरोलिसिस प्लांट लगे हुए हैं अक्रॉस इंडिया इन 20 स्टेट ऑफ इंडिया। तो वो सब ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगा हुआ है।
या तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लगा हुआ है या कन्वर्टेड जो ग्रामीण एरिया का जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको कन्वर्ट करके जो इंडस्ट्रियल लैंड बन गया उस पर लगा हुआ है। तो वहाँ ये अवेयरनेस ऑलरेडी है, वो इस धंधे में आ चुके हैं ऑलरेडी। अब उनको ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी स्टेबल है ये मार्केट। स्टार्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसको कहते हैं CRMB, क्रम रबर मोडिफाइड बिटवीन, यानी कि उसमें रबर मिक्स कर दिया गया है गिट्टी और कोलतार के साथ में ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। और गवर्नमेंट ने उसको अब अपने हाथ में ले लिया है और इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी सब्सिडीज़ भी दी जा रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है और इस इंडस्ट्री को अब आगे लेके जा रहे हैं। अब नेसेसिटी हो रही है। नितिन गडकरी साहब ने भी बोला था कि हम ये रबर जो निकलता है टायर से, इसको रीयूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है इसको CRMB बना करके रोड्स में बनाने में यूज़ किया जाए। नहीं, जैसे आपने कभी रोड बनते हुए देखा हो तो उसके अंदर क्या है, एक तो गिट्टी होता है, एक डामर होता है, दोनों को मिक्स करते हैं। अब उसके साथ में गिट्टी की मात्रा को कम कर दिया और उसमें 10% 15% जो है रबर मटेरियल, बारीक साबुत टायर नहीं डलता है, क्रम डलता है उसके अंदर। क्रम जो बनाया जाता है वो बहुत कम छोटा छोटा साइज़ का टुकड़ा बनाया जाता है, उसको उसके अंदर डाल देते हैं जिससे पकड़ अच्छी हो जाती है, स्ट्रेंथ बनी रहती है, लॉन्ग लाइफ चलता है, वो स्किट नहीं होते व्हीकल्स। वेस्टेज 100% वेस्टेज। वेस्टेज के बाद का ही रोल है आज का जो आप देख रहे हैं सब चेहरे, ये आज जो सब दिख रहे हैं ये सब रिसाइकलर्स के चेहरे हैं, ये सब हेल्प कर रहे हैं। शहरों को हम कैसे जोड़ेंगे इसमें सर? हाँ जी सर, छोटे शहरों को जो सेकेंड हैंड टायर, छोटे शहरों को हम कैसे जोड़ेंगे ताकि इसकी उपयोगिता बड़े लेवल पर हो? ऑलरेडी छोटे शहर जुड़े हुए हैं। आप आसाम से लेकर के कन्याकुमारी, आप हिमाचल चले जाओ, आप JNK चले जाओ, आप झारखंड चले जाओ, सब जगह ये प्लांट लगे हुए हैं। आज कहीं पे भी नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ ना कि 20 लाख टन जो नया टायर बनता है वो डिस्कार्ड होता है, 3 साल का लाइफ मांगती है गवर्नमेंट उसको, 3 साल के बाद वो कन्वर्ट होता है वेस्ट के अंदर। उसके बावजूद भी 3 से 5 लाख टन जो टायर है वो हमें इम्पोर्ट करने पड़ रहा है रिसाइकलिंग के लिए, ताकि उनको भी हम यहाँ ला के ख़त्म कर देंगे। आप गूगल करके देखिएगा, कुवैत के अंदर बड़ा सा ढेर लगा हुआ था लाखों टन टायर्स का, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। पूरा UAE, ऑस्ट्रेलिया, आप UK का पूरा पार्ट, यूरोप, USA सब जगह से टायर आ रहा है। शिप भर के आते हैं और यहाँ रिसाइकल से एनर्जी जनरेट की जाती है और उससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। बाहर हम देखते हैं, विदेशों में हम देखते हैं, वहाँ सड़कें भी बन जाती हैं रबर। वही सड़कें बननी स्टार्ट हो गई है, इंडिया में भी स्टार्ट हो गई है। आने वाले 1 साल में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इसमें। International experience, 2-3 examples. How along with this? Yeah, both. Closer. Mic. Yeah, both this. Yes, well, we do see on an international level that EPR regulations in various products have been the right way to foster circular economy and start with a spark in principle that a change is happening and that the industry understands we need to take care of products beyond the lifetime and the usage of the product in itself. In the tire industry, where we have established EPR regulations in various countries, partially since over 2 decades, and there are different concepts of how you technically can do it, but it always goes to the same point of building an ecosystem that helps to go from collection to technology on the road. And there is also number one, the EPR. Because we have different infrastructure, we have different cultural situations, we have different
इसी नारे को सामने रखते हुए हमने विजन बनाया और हमारे सारे सरकारी जो मंत्रालय हैं उन्होंने भी इसको एक विजन बनाया। हमने सोचा क्यों ना सस्टेनेबिलिटी यानी ये जो वेस्ट मैनेजमेंट जो सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है इसको पॉलिसी टाइम्स, क्योंकि जो हमेशा इस देश में पॉलिसी एडवोकेसी करने के लिए बनाया गया है और उसका वही मिशन है कि देश में तरक्की लाना है अच्छे एडवोकेसी करके। तो हमने सोचा सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यही नारा था कि कार्बन मुक्त देश बनाना है, तो हमने इसको समझा और प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आपका बैटरी वेस्ट और अब टायर वेस्ट, इन सारे सेक्टरों में हम लगातार जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनको सिंगल प्लेटफॉर्म में लाके उनके बीच बिजनेस नेटवर्किंग कराते हैं, उनके बीच एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन एंड ये कराते हैं और इसको करा के एक कमर्शियली वायबल रिसाइकलिंग सेक्टर बना रहे हैं, क्योंकि ये सेक्टर जितना बिजनेस के लिए वायबल है देश के लिए उतना ही ये अच्छा है। तो हमको दोनों का फ़ायदा उठा के एक बहुत सारे रोजगार आ रहे हैं, लाखों करोड़ों के तादाद पे रोजगार अब बन रहे हैं हमारे वेस्ट मैनेजमेंट पे। पहले इसको इस तरह से इस रेस्पेक्ट के नज़रिए से नहीं देखा जाता था, आज ये बहुत रेस्पेक्टफुल और एक गोल्ड माइन के तौर पे ये सेक्टर को देखा जा रहा है। तो हमने ये मिशन लिया है ट्राई के साथ, RLG के साथ हमने एक साथ मिलकर ये मिशन लिया है कि हम कंटिन्यू इसके एडवोकेसी करेंगे। सरकार को जो सपोर्ट और मदद चाहिए हम एज ए थर्ड पार्टी एजेंसी वो देंगे, हम इंडस्ट्री के सारे लीडर मिलके। तो यही हमारा मिशन था और लगभग हम कामयाब हैं, क्योंकि RLG ग्रुप और ट्राई जैसे हमारे पार्टनर के साथ काम करके हम बहुत एक हद तक हम कामयाबी हासिल किया है इससे। थैंक यू। प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो मुहिम चला रहे हैं उनके साथ में प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रयास करना। तो 4-5 सेक्टर में भारत ने बहुत सख्त कदम लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक सेगमेंट था जो हम आपसे बहुत बार बात कर चुके हैं, बहुत सारे हमने प्रोग्राम किया इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा प्रदूषण बनाती है, क्रिएट करती है। तो हमने प्रदूषण मुक्त ट्रांसपोर्ट यानी ग्रीन ट्रांसपोर्ट के लिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। सरकार के पॉलिसी को बिजनेस लीडर तक, कॉलेज इंस्टीट्यूशन तक, आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी समिट हमारा एक ग्लोबल हर साल का इवेंट है, जिसके ज़रिए हमने अभी प्लास्टिक के बाद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसके बाद बैटरी वेस्ट के बाद जो टायर है, ये टायर भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रदूषण फैलाती है। जो टायर वेस्ट हो जाता है तो उस वेस्ट टायर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस करी। यहाँ सारे टायर कंपनी को बुलाए, सारे टायर रिसाइकलर को बुलाए और बुला के और सरकारी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, लाइन मिनिस्टर, उनको बुलाए और सबके बीच हम नेटवर्क करा रहे हैं कि किस तरह से वो एक दूसरे से बिजनेस कर सकें और सबके बीच एक कम्युनिकेशन करा रहे हैं कि किस तरह से सारे मल्टी स्टेक होल्डर मिल के टायर की रिसाइकिल किया जाए और टायर को फिर रीयूज़ करके झंडा था। और हमारे लोकल कुछ बहुत सारे लीडर आए, बहुत अच्छा डिस्कशन, बहुत खुश है और उम्मीद है कि टायर रिसाइकलिंग एक सबसे बड़ा इंडस्ट्री बनने वाला है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनने वाला है, बहुत लोगों को रोज़गार मिलने वाला है और इसके साथ साथ भारत प्रदूषण मुक्त की जो इसकी जर्नी है उसमें कामयाबी मिलने वाली है। ये शहरों में है कि सिटी गांव में भी? हमारा मकसद शुरू, क्योंकि टायर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शहरों में होता है, क्योंकि गाड़ी ज़्यादातर शहरों में चलती है, तो शहर में सबसे पहले ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इसके बाद हम छोटे छोटे शहरों में जाएंगे, वहाँ इस तरह से कार्यक्रम करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, फिर गाँव तक पहुँचेंगे, क्योंकि टायर अभी गाँव तक उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो ये हमारा जागरूकता के लिए क्या प्लान है? जागरूकता के लिए आप जैसे हमारे मीडिया से जो भाई हैं, आपके थ्रू हम इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हम आम पब्लिक तक, कॉमन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके ये सपोर्ट लेके हम आम आदमी तक इस मैसेज को पहुंचा सकें।